Good evening, everyone. Welcome to day three, that is Android development. We have with us Ronak and Aditi. They will be giving you an insightful session on Android development. Stay tuned, pay attention. In case of queries, you can just reach out through chat section or through unmuting your mics. And I can see most of you are praising the presentation. The credit, of course, goes to Ronak and Aditi. They have taken hell lot of efforts for making the presentation or may it be content, so just pay attention, and if you can convey to your friends, please ask them to join fast so that they can also take the benefit of this session. Just handing over to Ronak, you guys can start. Ronak, you and Aditi can start. Hello. Yeah. Actually, my Yeah, mic is removed. Chalo. I would like to thank my core committee members who are providing me this virtual platform to share my knowledge with this all our core committee members and also with our this uh, students who are joined with our DSC club. So guys, if we consider there is means out of 100, 70% people are using Android phones. So are you think about this Android? What is this Android? Anyone can guess what is this Android? Hello, hello. yeah, Ronak, you are audible. Okay. So guys, Android is what is Android? Android is a mobile platform. It's not an operating system. Means most of people thinking like it's Android is a one of the operating system, but not. It is not operating system. It is a mobile platform, and this mobile platform which consists of three things. One is your operating system, mainframe, and there is key features. So think about operating system, guys. What is operating system? Means those who are from computer science or information technology, they people know what is operating system. But simply we go very clearly, guys. This operating system is simple, like it is an interactive part, means it is interacting with our hardware component and with software component. If you consider like any electronic device like a mobile phone or your laptop, okay, so there is some hardware component and there is some software component. So it is a something which is allow you to interact with software or interact with hardware also, guys. So this is nothing but your operating system. Means simply, if we consider operating system is a middle layer between your hardware component and software component. Okay, so can you guess? Hello? Yeah. So if you consider this operating system means on which kind of devices we can able to use this operating system, like your electronic devices. Means if we consider mobile, there is also one of the operating system, because in mobile phone we are interacting with hardware or software in tab or in smart TVs, and nowadays in smartwatches also. So here is one is also missing, like if you are go with the car, so there is also interactive with interaction with हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसके अंदर भी एक ऐसे डिवाइसेस रहता है जहाँ से आप गूगल मैप एक्सेस करते हो, तो कार के अंदर भी ये एंड्रॉयड सिस्टम कंपेटेबल रहता है गाइस. सो या तो हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है. सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम इज and middleware. Okay, so guys, today we are also discuss on how to become an Android developer. So in future में आप Android developer कैसे बन सकते हो, या तो फिर आपको Android developer बनना है तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा और आपको क्या क्या चीज़ों का रिक्वायरमेंट रहेगा. सो इफ हम अगर देखते हैं कि सिंपल कोई भी एंड्रॉइड डेवलपर बनना है तो उसको लैपटॉप और एक मोबाइल फोन एंड एक इम्यूलेटर का जरूरत होता है. इफ आपके पास मोबाइल फोन नहीं है तो नो इशू, आप इम्यूलेटर का भी यूज कर सकते हो. ओके, हेलो, या देन आपको लैंग्वेजेस कौन से रिक्वायर्ड रहते हैं एंड्रॉइड के लिए. आपको एंड्रॉइड अगर काम करना है एंड्रॉइड पे तो आपको
एक जावा, अगर आप जावा में बेस्ट हो तो आप एंड्रॉयड कर सकते हो, या तो फिर कोटलिन जो कि आज मीन्स नया लॉन्च हुआ है अभी, जो भी नए नए अपडेट्स आ रहे हैं एंड्रॉयड में, तो वैसे वो इंटरैक्टिव भी हो रहा है यूज़र के साथ। सो उन्होंने एक कोटलिन में ऐसा एक लैंग्वेज रखा है कि जहाँ पे आप बेस्ट परफॉर्म कर सकते हो एंड्रॉयड में। देन गाइस, तो हम अगर थोड़ा डीपली कंसिडर करते हैं ना एंड्रॉयड को, तो देखो एंड्रॉयड इज सिंपली ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन पार्ट क्या होते हैं, या तो फिर ऑपरेटिंग सिस्टम का रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं गाइस? एक तो वो मेमोरी मैनेजमेंट करता है, देन सेकंड वन वो डिवाइस मींस योर डिवाइस मैनेजमेंट करता है, देन रिसोर्स मैनेजमेंट करता है, एंड पावर मैनेजमेंट करता है। तो सिंपली कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेते हो आप, अगर एंड्रॉयड फोन भी लेते हो, तो उसके अंदर मेमोरी मैनेजमेंट होता है। जैसे कि इफ यू ऐड सम रिकॉर्ड or if you remove some record, so at that time you are doing something memory management, no? And if we consider resource management guys, so resource management may at a time you are performing multiple operations, like you are text means you are chatting, or you are doing something, or like you are listening music. So at a time you are performing number of operations. So at that time what operating system is doing, operating system allocating resource for each and every process. So this is means you are performing something operation, so operating system allocate resource for that operation. Then we go for device management. How means driver management, sorry. What is driver management guys? If you are connecting some pen drive or some external device to your mobile phone, at that time you no need to install their software drivers. They are automatically inbuilt in operating system. So nowadays it is very smart. But if you consider about last 5 to 6 years, at that time you need to install some drivers. Okay. And power management, it's only managing the power. So this is the very basic funda of operating system. Okay. सो नाउ वी कंसिडर फॉर एंड्रॉयड कि एंड्रॉयड में डेवलपमेंट कैसे होता है। एज आई सेड, वेरी फर्स्ट स्टेप, यू नीड वन लैपटॉप एंड वन मोबाइल फोन। इफ आपके पास मोबाइल फोन नहीं है, तो आप एक वर्चुअल इम्यूलेटर करके जो आता है, एक इम्यूलेटर आता है जो कि आपका वर्चुअल एंड्रॉयड हो जाता है, उसके साथ आप काम कर सकते हो। सेकेंड वन, you need to learn any language like and Java. So if we consider guys जावा को अगर हम कंसिडर करते हैं, तो वो एंड्रॉयड में बैकएंड में कैसे परफॉर्म करता है कि जब कंसिडर कर लो कि आप जावा का डेवलपर हो, या तो फिर आपने जावा सीखा है, जब भी आप कोई भी जावा का प्रोग्राम चलाते हो, तो एट दैट टाइम आपको समथिंग इंपोर्ट करना पड़ता है, लाइक इंपोर्ट स्टार करके, या तो फिर स्कैनर यूज करो तो इंपोर्ट स्कैनर। तो वो सब आपको जावा के फाइल में इंपोर्ट करना होता है। तो वो बैकएंड में कैसे काम करता है एंड्रॉयड में, वो सारे के सारे जो पैकेज आप इंपोर्ट करते हो, देन वहाँ पे जेवीएम जो रहता है वो क्या करता है, आपका सोर्स कोड कन्वर्ट करके वो बाइट कोड में कन्वर्ट कर देता है, जो कि मशीन एग्जीक्यूटेबल रहता है। बट इट्स नॉट मशीन एग्जीक्यूटेबल विदाउट virtual machine, means VMware, not VMware, means hello, JVM, Java Virtual Machine. After Java Virtual Machine, it will be executable. But only think up to guys, if your Java code is converted into byte code, so this is class file, okay? So this class file is not accessible on this Android device, because this is only accessible for heavy programs, like if you are working with desktop application, at that time you can execute this JVM dot class file. But in Java there is DVM. So what DVM is working, they take your class file as an input and they produce DEX file. So which is, so what is this DEX file? DEX file is simply your lightweight library which can be used with Android, or which can be executable in Android guys. Means simply, so see this all flow, means your class file is converted into byte code, then this byte code is again converted into
DEX file. So what is happening in this DEX file, or what kind of operation is done to it reduce their size and all these things. Okay, so what work is performed by DVM is DVM compress all your classes and redundant information and generate one simple DEX file. Okay, guys. So up to this, I think so you are clear with why we are using Java. Or guys, if you think like if you want to perform some graphical operation but it is not able to go with Java, so at that time what you are doing, सिंपली आपको मीन्स एट दैट टाइम आप क्या करते हो कि अगर आपको कोई ग्राफिकल के ऑपरेशंस परफॉर्म करना है या तो फिर कोई ग्राफिकल का एक बनाना है, तो वो आपको जावा के थ्रू नहीं सपोर्ट कर रहा है, तो एट दैट टाइम देयर इज अ नेटिव लाइब्रेरीज करके एक पार्ट आता है. जो नेटिव लाइब्रेरीज होता है मीन्स विद द हेल्प ऑफ नेटिव लाइब्रेरी your Java code can communicate with other language code with the help of native libraries guys. तो जब भी हम नेटिव लाइब्रेरीज के बारे में बात करते हैं तो एट दैट टाइम अगर आपको कोई ग्राफिकल का ऑपरेशन परफॉर्म करना है या तो फिर कोई ग्राफिक्स बनाना है, तो एट दैट टाइम आप क्या करोगे कि नेटिव लाइब्रेरीज को जावा के कोड को कनेक्ट कर दो तो आपको ग्राफिक्स भी बन के दिखेगा, राइट. सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट गाइस. और इवन अगर हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं कि ये जावा में फ्रेमवर्क क्या रहता है, तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है एंड्रॉइड स्टूडियो, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सारा रिसोर्स एक साथ मिलता है. मीन्स ऑल थिंग्स आर इनबिल्ट इन वन. यू नो नीड टू डू सम plugins or importing something or anything, बिकॉज यहाँ पे जो ये एंड्रॉइड स्टूडियो है उसके बारे में आपको आदिति वेल एंड गुड एक्सप्लेन करेंगी. और यहाँ पे कुछ वो इंटरफेसेस है एंड्रॉइड के जो आपको एंड्रॉइड रेडीमेड टेम्पलेट प्रोवाइड करता है. लाइक आपको सिंपल सा एक मेन एक्टिविटी या बेसिक एक्टिविटी बनाना है, यहाँ से सिलेक्ट कर लो और वहाँ पे तुम काम करो. सो सिंपली ये ओनली कंसिडर कर रहा हूँ मैं मोबाइल को, बट हियर सम डिवाइसेस के लिए भी टेम्पलेट्स अवेलेबल है लाइक टीवी, एंड्रॉइड, देन एंड्रॉइड वेयर वॉच ओएस वगैरह के लिए. देन गाइज यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटाबेस मीन्स डेटाबेस के साथ कम्युनिकेशन कैसे होता है और एंड्रॉइड में हम कौन से टाइप के डेटाबेसेस यूज कर सकते हैं. सो गाइज एंड्रॉइड में 4 टाइप के डेटाबेसेस आप यूज कर सकते हो. अगर आपको ऑफलाइन यूज करना है तो SQL एलआईटी यूज कर लो या तो फिर MySQL यूज कर लो. अगर आपको ऑनलाइन में वर्क करना है मीन्स टोटली डायनेमिक जाना है तो एट दैट टाइम यू कैन प्रेफर विद MongoDB, और फ्री ऑफ कॉस्ट करना है तो फिर फ्लटर यूज कर लो गाइस, एकदम बेस्ट. सो हियर मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ गाइस. इधर तो इधर क्या होता है ना कि अगर आप कोई भी स्टैटिक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते हो तो उसके अंदर फॉर एग्जांपल अभी आपने 5 साल पीछे सोचा देखा होगा या तो फिर सुना होगा कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ एंड्रॉइड ऐप जो रहते थे वो स्टैटिक रहते थे. बट अभी विदाउट इंटरनेट यू आर नॉट एबल टू यूज एंड्रॉइड ऐप. मीन्स आप एंड्रॉइड ऐप विदाउट इंटरनेट के यूज नहीं कर पा रहे हो जो कि आप 5 साल पहले कर पा रहे थे, क्योंकि वो पूरा डायनेमिक हो गया है. स्टैटिक में ये था ना कि आप अगर सिंपली कोई भी कोड कर लो या तो फिर एक सिंपल एप्लीकेशन बना लो तो उसका एमबीज जो रहता था ना वो 45 to 60 एमबीज तक हो जाता था. और अभी के एंड्रॉइड एप्लीकेशन जो डायनेमिक है वो देखेंगे ना गाइज आप, तो आपको सीधे वो 20 to 30 एमबी के अंदर काफी कुछ एक्सेस करने को मिल रहा. सो ये स्टैटिक एंड डायनेमिक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है. सो नेक्स्ट, अगर आपने सिंपल कोई भी एंड्रॉइड स्टूडियो से कोई भी एक एप्लीकेशन बना लिया, कंसिडर करते हो कि आपने वो एपीके फाइल जनरेट कर लिया एंड्रॉइड स्टूडियो से, देन अगर हमें वो एंड्रॉइड स्टूडियो और जो भी आपका जो एप्लीकेशन है वो यूजर तक आपको कैसे हैंड ओवर करना है या तो फिर वो आपका बना हुआ एप्लीकेशन यूजर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, तो ये गाइज विद द हेल्प ऑफ गूगल प्ले कंसोल से होता है. तो वो जो आपको एक डैशबोर्ड दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, तो वो एक गूगल प्ले कंसोल का वो सिंपल सा डैशबोर्ड है. वहाँ पे आपको जाके आपका एपीके फाइल अपलोड करना है,
देन वो फाइल अपलोड होने के बाद आपका एप्लीकेशन जो रहता है वो प्ले स्टोर पे अपलोड हो जाता है। देन प्ले स्टोर से आप मीन्स यूजर्स वो एप्लीकेशन से सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। सो गाइज नाउ हमें तो ये तो सब क्लियर हो गया कि एप्लीकेशन बनने के बाद यूजर को कैसे एक्सेस होता है और एप्लीकेशन बनाने के लिए हमें कौन सा इंफॉर्मेशन नीडेड है। तो फिर अभी मैं आदिति को ये सेशन हैंड ओवर करता हूँ, सो शी कैन एक्सप्लेन यू द फर्दर ऑल how Android Studio is going to work and all. So thank you. Yeah, Ronak, can everyone reply me in chat box that how many of you use Android phones? Everyone. Yeah. So, as Ronak said, 75% of peoples use Android and 25% peoples use iOS, and rest of the peoples use other phones. So there is a lot of scope for an Android developer in IT industry. And if we consider a basic Android application and if we put it on Play Store, we can earn $77 per month. It is just a starting. And for becoming a Android developer, we should know Android Studio. भाई IPL का सीजन चल रहा है, तो MS धोनी जैसा हाइट्रिक मारना है तो हम लोग को पता होना चाहिए कि पिच कैसा है। तो फिर डिसाइड करेंगे ना कि पुल शॉट मारना है, स्ट्रेट ड्राइव मारना है या हेलीकॉप्टर शॉट मारना है। For this, for developing an Android application, we should know about Android Studio. So I'm going to tell you basic steps to develop an Android application using Android Studio. I usually use Android Studio because it has a rich set of libraries and functionalities, and every beginner can easily develop its own APK file in just a few steps. But before that, preparing yourself for developing an Android development, everyone must have Android SDK installed. And one more requirement for this, everyone must have at least basic knowledge of Java, because Java is used for backend development. Yeah. Tell me your question, Roshan, right? Just unmute yourself and ask question. Hello, Roshan. हेलो मैम। Yeah. एक्चुअली मैम ऐप डेवलपमेंट फ्रंट एंड एंड बैक डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा वो पूरी। Hello. You are not audible properly. हेलो। Yeah, Hi. Roshan. एक्चुअली मैम फ्रंट एंड डेवलप एंड बैक एंड डेवलप भी करना पड़ता है ना। Yes, yes. Hello, Aditi. I'll give you answer. Okay. हाँ, okay. आप जो बोल रहे हो, आपका क्वेश्चन ये है कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है। तो देखो, अगर आपको मीन्स कंसिडर कर लो कि आपको ओनली फ्रंट एंड में काम करना है, तो फ्रंट एंड में काम करना है तो एट दैट टाइम ऑल्सो आपको जावा सीखना ही पड़ेगा, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो भी सीखना पड़ेगा। क्योंकि सीन ये रहता है ना कि अभी मटेरियल डिजाइन नाम का एक कॉन्सेप्ट एंड्रॉइड में आ चुका है, जिसके लिए मीन्स विद द हेल्प ऑफ मटेरियल डिजाइनिंग काफी कुछ यूजफुल और अमेजिंग वेबसाइट सॉरी एप्लीकेशन आप बना सकते हो, राइट। सो फ्रंट एंड की बात कर रहे हो ना आप, ओनली फ्रंट एंड, तो आपको XML आना चाहिए, ओके, और थोड़ा बहुत जावा आना चाहिए। बेसिक से हो जाता है क्या, डीप नॉलेज चाहिए उसके लिए? नहीं, अगर आप फ्रंट एंड में एकदम गुड हो ना तो कोर जावा पढ़ लो, बस कोर जावा। And if you started working with Android Studio, you will be a pro in this. By step, if you start with just a login activity and after then you go on developing, you will be pro in this. So can I continue? एक्चुअली मैम इज बैक एंड डेवलपिंग इज लॉन्गर देन फ्रंट एंड। नो, सुनो, एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में कैसे रहता है ना कि बैक एंड डेवलपर एंड फ्रंट एंड डेवलपर दोनों साथ में काम करते हैं, बट दोनों का काम टोटली अलग रहता है। समझ आ रहा है आपको? यस सर। या तो वहाँ पे आपको क्या रहता है, कंपनी में रिक्वायरमेंट्स मीन्स काम कैसे आता है कि कोई भी फ्रंट एंड डेवलपर है
वो उसका डिजाइनिंग का पार्ट खत्म करके बैकएंड डेवलपर को दे देता है। देन बैकएंड डेवलपर उसके ऊपर जो भी एक्शन परफॉर्म का काम है, मीन्स लाइक अगर आपने एक सिंपल सा लॉगिन फॉर्म बनाया है, ओके, फ्रंट एंड में बना सकते हो लॉगिन फॉर्म, एंड सर। जब कि आप उसके ऊपर कोई भी डेटा डाल रहे हो एंड देन लॉग इन कर रहे हो, तो वो डेटा वहां से डेटाबेस में जाएगा। तो वो जो एक्शन परफॉर्म का काम हो रहा है वो पूरा बैकएंड डेवलपर करता है। ओके। मतलब सर हम जो एप्लीकेशन बना रहे हैं उसके लिए हमें टीम की जरूरत है, जैसे किसी को ओके ओके। फ्रंट एंड डेवलपिंग आती है, किसी को बैक एंड। या तो सुनो सुनो, हेलो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या तो फिर मैं ही आपका काम कर दूंगा, या हो सके तो मैं कैन यू बेस्ट। गिव मी योर नंबर सर? या फॉर श्योर, मैं चैट बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर डालता हूँ। Okay, Ronak, I will continue. या And your location with GPS. These are like activities. Before developing your Android application, you should select your activity. Next, Ronak. Next slide. Yeah, this is the window. Before you develop your Android application, you should name your Android application here. Then here is a save location to save your APK file. uh, at language, you can select Java or Kotlin is a recent, but I prefer to Java because I have knowledge of Java. And minimum SDK is a like Android have many versions from alpha, beta, and recent is a Android 11, which is released on September 2020. So this minimum SDK shows the ratio on how many device your APK gonna run. So depending on that, select your minimum SDK. Next. Yeah, this is your Android development environment. At the left hand side, there are files and folders which are automatically created by Android Studio when you finish your setup. Then next to that, there is an buttons, image, all these things. You can beginner can develop a Android application by just drag and drop. Feature. And there are three views for Android development: code view, split view, and design view. In code view, the code of your Android application is displayed, and in design view, both blue and green sorry, blue and white screen are your design view of your Android application. And there are two files: activity main.xml and main activity.java. The all UI user interface features or changes you made in XML file, and all the database connectivity and database related activities you done in Java .java file. You can There are two steps to deploy your Android application. First one is to a real Android device. You can generate a APK file, your complete Android application, by just plugging in your mobile phone, and starting with a debugger option, that is developer option, and your APK file is generated on your mobile phone. And other one option is to run your application on emulator. As Ronak said, it is a virtual device. It is same like your mobile phone. And you can here there are several buttons. At first there is app, and right next to it Pixel 3 API, which is a version of emulator. And if you choose first option, that is real Android device, then you should select your mobile phone name at here. And right next to green button, green triangle, is to run for run button. And you can generate or run your APK file on emulator. Next.
Yeah, Gradile. Gradile is a heart of Android development, and Gradile is a built-in system which is used to automated building, testing, and deploying, etc. It is necessary to aware about Gradile so that you can be pro in Android development. Next. There is also drag and drop facility available for beginner developer in Android Studio. So if you want to start your career in Android development, you can begin with just drag and drop, and after being regular, you can develop your own Android application in Android Studio. Next. Yeah, Yeah, done. thank you. Yeah, guys, if you have a question, please do ask. This is the best source to learn Java. Mm, I think the best source is Developer Student Club made Bhujbol Knowledge City. Okay. yeah, I sir. think in my view जो भी आपके 3 दिन के सेशन हुए ना, ओके, वेब डेवलपमेंट का हुआ, मशीन लर्निंग का हुआ, एंड्रॉइड का हुआ, इन 3 दिन पहले आपको इसके बारे में जो भी नहीं, मतलब थोड़ा भी बहुत पता नहीं था, लेकिन इन 3 सेशन में आपको कुछ तो भी पता चला होगा. ओके, सो सोच लो कि अगर आपने ये डेवलपर स्टूडेंट क्लब को एक अच्छे से माइंड में रखा कि हाँ इससे मुझे कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो हाँ ज़रूर सीखने को मिलेगा. इसको थ्रू आउट द ईयर जो भी एप्लीकेशन बेस्ड काम चलेगा ना, वो बहुत आउटस्टैंडिंग होने वाला है. इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कल भी बोला था कि जो भी आप करते हो ना, मतलब कि सेशन अगर खराब हुआ, कि सेशन अगर बीच में रुक गया तो चले जाना, ये चीज़ें आपको मतलब जो भी आपका जो पैशन है ना, उसको बहुत दूर छोड़ देगी आपसे. सो प्लीज़ ऐसा मत किया करो कि अगर सेशन खराब हुआ तो फिर ये अच्छा नहीं है. ऐसा नहीं होता. टेक्निकल हाँ. प्रॉब्लम सबको आते हैं. सो प्लीज़ be with developer student club and learn Java. Okay. हेलो सर. Yeah, Naveen, you have a question. So we can create our own API by two ways. As I said, we can generate our APK file by using emulator also, and by developer or USB debugging option also. And this is just introduction session, so I just explained basic things of Android Studio. Means I have one example, like MS Dhoni. He is aware about his pitch and he can play well. माझा एक एक्झाम्पल आहे की आमच्या डेव्हलपर DSCच्या कोर टीम मेंबर मध्ये हर्षल पगार आहे, ज्याचं फर्स्ट सेशन झालं वेब डेव्हलपमेंट मध्ये. तो त्याच्या पीच बद्दल एवढा अवेअर आहे की आमची DSCची वेबसाईट तुम्ही लोकांनी व्हिजिट केलेली असेल, ती वेबसाईट त्यांनी एका दिवसात पूर्ण डेव्हलप केली आहे. तर आपण जर आपल्या टेक्नॉलॉजी रिलेटेड तेवढं अवेअर असलो आणि तेवढं आपण त्याच्याशी रिलेट करत असलो, तर आपल्याला डेव्हलपमेंटला जास्त वेळ लागत नाही, असं मला वाटतं. हॅलो मॅम. Yes, हा. do ask. सर, आपण या सेशन मध्ये एखाद्या प्रोजेक्टवर वर्क करणार आहोत की नाही? हो, नक्की नक्की. Definitely we फॉर are working शुअर. on any one project, guys. So simply means एकदम बेसिक वाले प्रोजेक्ट पे काम करेंगे हम लोग, जो आप भी घर से वो फॉलो करके खुद का वो प्रोजेक्ट बना सकते हो. ओके. हा, आणि मित्र बघ की कसं होतं की ज्या ठिकाणी पण डेव्हलपर स्टुडंट क्लबचा असोसिएशन असतं ना, ओके, तर तिथे कसं काम चालतं, आपल्या इकडे पण असंच काम चालणार आहे. की आता ॲक्च्युली बघ, केनियामध्ये असं झालेलं होतं की त्या लोकांना एक छोट्याशा स्मॉल लोकेशनला फूड डिलिव्हरी ॲप नव्हतं. ओके, तर तिथला जो डेव्हलपर स्टुडंट क्लब होता, तर त्यांनी तिथला तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला होता. ओके, सोशली. सो त्यांनी एक म्हणजे लाईव्ह प्रोजेक्टवरती काम केलं आहे. सो डेफिनेटली तुम्हाला लाईव्ह प्रोजेक्टवरतीच काम करायला मिळणार आहे. ओके, फक्त कोर्सेस कसं असतात की कोर्सेसमध्ये आपण शिकून घेतो, सर्टिफिकेशन घेतलं, झालं काम, बट आपण ते म्हणजे प्रॉपरली ते अप्लाय नाही करत. बट इथे नाही का, तुम्हाला डेली बेसिसवरती जे काही सेशन्स, वर्कशॉप, हॅकेथॉन्स होणार आहेत ना, तर त्याच्यावरती तुम्हाला तसं ॲप्लिकेशन बेस्ड काम करायला मिळणार आहे. आणि त्याच्यासाठीच आपण जे उद्याचं सेशन ठेवलं आहे ना 6 वाजता, इंट्रोडक्शन टू डेव्हलपर स्टुडंट क्लब. ओके, सो त्यासाठी तुम्ही नक्की जॉईन व्हा, की तुम्हाला थ्रू आउट द इयरचा जो रोड मॅप आहे ना, तो त्याच्यात समजणार आहे. Okay, any doubt?
I am working as usual, but it is static, so how can I go for dynamic one? Ronak, Naveen having Hello, some yeah, question. yeah. Hello, yeah. एज यू से कि आपने जो भी एक स्टैटिक कैलकुलेटर बनाया है उसको आपको डायनेमिक कैसे करना है, राइट? सो सिंपली डायनेमिकली वर्क कैसे होता है ना कि आप अगर मीन्स आपको एक एपीआई बनाना पड़ेगा, वो ऐसा एपीआई बनाना पड़ेगा जो आपके डेटाबेस से कम्युनिकेट कर रहा। मीन्स सिंपली अगर कंसिडर करते हो डायनेमिक मीन्स एंड्रॉइड में डायनेमिक कैसे काम करता है ना गाइज, कि एक वेबसाइट है, जो एक वेबसाइट है तो वहां से आप अगर कुछ भी चेंजेस करते हो तो वो आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशन में दिखने चाहिए। तो ऐसे वो डायनेमिकली वर्क करता है। मीन्स सिंपली अगर आप वेबसाइट से कोई भी कंपोनेंट ऐड करते हो तो वो कंपोनेंट आपके एंड्रॉइड के एप्लीकेशन में ऐड हो जाता है। ओके, सो इस टाइप से आप उधर डायनेमिक में जा सकते हो। तो सिंपली आपको और एक एपीआई बनाना पड़ेगा। विद दैट एपीआई यू कैन क्रिएट अ डायनेमिक कैलकुलेटर आल्सो। हेलो, Guys, if you have any other question, please unmute yourself or you can use the chat section. Yeah, one question. We can merge them. Look, this is an introduction session for Android development. We are going to learn how to merge both front end and back end in Android. We will see these things in later on session. This is just बट introduction. ध्रुमान बट मला जेवढं माहिती तेवढं सांगतो की ओके, कोणतंही ऍप्लिकेशन तू बनवलं, ओके, ते वेब ऍप्लिकेशन असो, हर्षल अँड्रॉइड हर्षल ऍप्लिकेशन. हर्षल हां हर्षल हां हेलो, हां बोल. प्लीज डू हां. टॉक इन हिंदी, ही इज नॉट गेटिंग यू इन मराठी। ओके 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 ध्रुमन, आप जो भी एप्लीकेशन बनाते हो ना, ओके, वेब एप्लीकेशन हो गया या एंड्रॉयड एप्लीकेशन हो गया, ओके, जो भी चीज़ आपको लाइव दिख रही ना उसको कहीं तो भी होस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? अगर जैसे आप घर बनाते हो तो घर आप जमीन पर बनाते हो, तो आपकी जमीन जो हो गई ना वो सर्वर है, और आपका घर जो है वो एक वेब एप्लीकेशन समझ लो या एंड्रॉयड एप्लीकेशन समझ लो, तो वहाँ पर उसको डालना पड़ता है, ठीक है? तो उसको डालने के बाद जो उसकी कनेक्टिविटी है ना, तो इनडायरेक्टली अब देखो, घर में अगर लोग नहीं है, ओके, और घर में कुछ डायनामिकली मूवमेंट नहीं हो रही है, तो वो स्टैटिक एप्लीकेशन है। लेकिन उसमें अगर हम बैकएंड लगाकर कुछ, अगर एक एग्जांपल लो कि जो घर में रह रहे हैं वो लोग हैं डायनामिक, ओके, वो है बैकएंड, वो कुछ तो भी उसमें एक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं डायनामिक। वैसे ही सर्वर पे होता है। सर्वर पे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट जो दिख रही है, आपको यूजर इंटरफेस जो दिख रहा है, वो होता है फ्रंट एंड, और बैक एंड में जो काम चलता है वो होता है कि डायनामिकली, ठीक है? उसको कंबाइन करने के लिए अभी आपको जो मैंने बोला कि फ्रंट एंड के लिए मैंने भी वेब डेवलपमेंट बोला था कि ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है, जैसे एंड्रॉयड में XML रहता है और फिर बैक एंड में कोर जावा रहता है। तो रौनक आपको पूरा समझाएगा वो, ठीक है? आप सेशन ज्वाइन करो जो भी एंड्रॉयड के होने वाले हैं, ओके? और इतना समझ लो कि स्टैटिक मतलब जो सिर्फ खड़ा हुआ है, ओके, चल नहीं रहा है, कुछ भी उसका रिस्पॉन्सिव नहीं है, और डायनामिक मतलब कि बैक एंड और फ्रंट एंड का कम्युनिकेशन हुआ तो वो डायनामिक हो जाता है, उसके हेलो, कोई तो भी रिस्पॉन्स आ रहा है। या ध्रुमन, जैसे कि आपने पूछा है कि वो फ्रंट एंड का कोड और बैक एंड का कोड मर्ज कैसे करते हैं, राइट? सो मैं जो बोला ना आपको कि एक नेटिव लाइब्रेरीज आता है। ओके, हेलो, Yeah, या Ronak. या जो Okay. या प्लीज डू आस्क। I was just asking if the concept is same as web development. Just now Herschel spoke. It sounded same as web development. नो नो Like नो the concept is same, right? नो, एक्चुअली सी HTML में हम लोग क्या करते हैं ना कि अगर आपको HTML का कोड CSS में मर्ज करना है तो फिर आपको एक लिंक डालना पड़ता है CSS के फाइल का। देन वो पूरा कंटेंट जो है आपका CSS का वो HTML के अंदर एक्सेस होता है, राइट? तो ऐसे मर्जिंग होता है। Yeah. या तो फिर एंड्रॉइड में क्या होता है ना, जैसे कि मैं बोला आपको कि जो जावा का जो भी सोर्स कोड रहता है वो क्लास में कन्वर्ट होता है। देन वो क्लास फाइल जो रहता है वो आपका एंड्रॉइड सिस्टम पे एग्जीक्यूटेबल नहीं रहता है, तो वो सारे क्लास को जो आपका डीवीएम रहता है ना,
डेल्विक वर्चुअल मशीन वो एक सारे क्लास फाइल्स को आपके कॉम्प्रेस कर देता है, और वो उसका एक जो DEX करके जो एक्सटेंशन आता है वो एकदम लिटिल फॉर्मेट में आता है, मीन्स लाइट वेट फॉर्मेट में आता है। और एंड्रॉइड के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट देखने जाए ना तो नेटिव लाइब्रेरीज है। विद द हेल्प ऑफ नेटिव लाइब्रेरीज आपका जावा जो है वो दूसरे लैंग्वेजेस के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इफ अगर आप फ्रंट एंड बोल रहे हो तो फ्रंट एंड एंड्रॉइड का पूरा XML में होता है। तो अभी जो है एंड्रॉइड काफी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, जैसे कि फेस रिकॉग्नाइजेशन वो भी आपका जो है वो एंड्रॉइड में आ गया है, या तो फिर फिंगरप्रिंट सेंसर। तो एट दैट टाइम वहाँ पे पाइथन भी यूज हो रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ नेटिव लाइब्रेरीज पाइथन कैन कम्युनिकेट विद जावा। आ रहा है समझ में आपको? Yeah. या सो दिस। Ronak, there's one more question. ओके। For Android development, we basically the core language we use is Java, right? हम्म। Uh, but nowadays we're seeing that the most of the applications they're using machine learning, then AI, most of the AI based app. For that we commonly use Python or Lisp, Prolog, this kind of language, which I don't think can be compiled with Java. So is how do he या compile with? ओके ओके, या आई गॉट, मैं आपका क्वेश्चन समझा ध्रुवन। जस्ट कंसिडर कर लो कि एक कोई भी पाइथन का कोड है, ओके, फेस रिकॉग्नाइजेशन का पाइथन का कोड है, और वो आपको एंड्रॉइड में एग्जीक्यूट करने का है। तो कैसे हो रहा है ना कि वो पाइथन का कोड देन आपका जावा का कोड जब भी इंटरैक्ट कैसे कर रहा है विद द हेल्प ऑफ नेटिव लाइब्रेरीज। तो नेटिव लाइब्रेरीज आपको नेटिव मेथड भी प्रोवाइड करती है जावा के अंदर। तो एट दैट टाइम आपको क्या करने का है, फेस रिकॉग्नाइजेशन डॉट मैनेजर डाला तो आपको वो सारा जो भी आपका पाइथन का कोड परफॉर्म हो रहा है ना उसके कंटेंट आप जावा में एक्सेस कर सकते हो। समझे? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोकेशन एक्सेस करने का है किसी का जावा में, तो आपको क्या डालना पड़ता है, लोकेशन मैनेजर। तो लोकेशन मैनेजर में आपको गेट लोकेशन सेट लोकेशन यूज कर सकते हो, या तो फिर ब्लूटूथ लेने का है, ब्लूटूथ मैनेजर, टर्न ऑन टर्न ऑफ। सो ये जो ब्लूटूथ मैनेजर वाला जो फंडा है वो कहाँ से बन के आ रहा, नेटिव लाइब्रेरी से बन के आ रहा, वो नेटिव लाइब्रेरी से बन के आ रहा। तो नेटिव लाइब्रेरी आपको क्या कर रही है कि आपके अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ कम्युनिकेशन करके वो नेटिव लाइब्रेरी जनरेट करके वो आपको एक्सेस प्रोवाइड कर रही है। समझे? Yeah, या thanks. यू वेलकम। नेक्स्ट Any क्वेश्चन। other question, guys? स्वप्नीलने विचारलाय की व्हॉट इज बेसिक स्टेप्स फॉर ऍप्लिकेशन डेव्हलपमेंट? For Android application development, okay, you need to learn Java and front-end designing. As in Android Studio, there is a very good facilities of drag and drop. मीन्स जब भी आप कोई भी बटन या तो फिर कोई भी कंपोनेंट एक सिंपली ड्रैग करके वो लेआउट में डालते हो ना, तो उसका कोड XML में ऑटोमेटिक जनरेट होता है, और वो कोड यूजर को एक्सेस रहता है, जहाँ पे जाके एक तो आप कोड से भी फ्रंट एंड डिजाइन कर रख सकते हो, या तो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी फ्रंट एंड डिजाइन कर सकते हो। तो देखने जाए तो फ्रंट एंड का अंडरस्टैंडिंग जो है बिगिनर के लिए वो ड्रैग एंड ड्रॉप करके वो कोड स्टडी कर सकता है। बट फ्रंट एंड में बैक एंड में जाना है तो बैक एंड में जाने के टाइम आपको एटलीस्ट जावा आना चाहिए गाइस। तो जावा से आपको कोड अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, जो भी आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे स्टडी करोगे तो, या तो फिर कुछ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो जावा आपको सीखना ही है। तो ये आपका एक सेकेंड स्टेप ये रहता है कि आपको जावा आना चाहिए। एंड थर्ड स्टेप जो रहता है कि आप जब भी एंड्रॉइड का एप्लीकेशन बना रहे हो, जो भी आपने कोड किया, फ्रंट एंड का किया, बैक एंड का किया, देन रन कर रहे हो, रन करते वक्त एपीके फाइल जनरेट हो रहा है, तो सिंपली वो एपीके फाइल आपको टेस्ट करना है, तो आप एक मोबाइल फोन को कनेक्ट करके वो एपीके फाइल आपके फोन में एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो एंड्रॉइड स्टूडियो सीखने के लिए या तो फिर एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए दो तीन ही स्टेप है जो वेरी इजी है। आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए, एक तो आपको जावा का नॉलेज होना चाहिए, देन आपके पास एक मोबाइल डिवाइस होना चाहिए, दैट्स इट। हेलो।
Any more questions? You guys can just put it into chat section. Meanwhile, I would just like to say thank you Aditi and Ronak for wonderful session. I hope everybody has gained some insight out of it. And most of your questions, like I would say from my side, आप लोगों ने जो questions पूछे हैं, इसके लिए थोड़ा time लगेगा. Give us time. When once you join the sessions, everything would be taken, everything you all would be learning together, and projects we would be making. And ये जो भी है ना backend कैसे merge करना है, दूसरे language को कैसे include करना है, these all experiments you would be doing, and your doubts would be getting more clearer when you do it like when you do the experiment practically. Okay. And from my side I would just like to say, even after conveying yesterday about info session that is tomorrow at 6 p.m, nobody has registered at all. So guys, what you have to do is just you have to visit dsc.community.dev, and over there jaake you have to just search for our college name. Just type into the search bar Nasik, you will get our college name as MET Bhujbal Knowledge City. You have to just click on the college name, and there you will see an event that is created as info session dated tomorrow. You have to just click on the event and RSVP for that event. As you all know, DSE is in, like, you know, DSE is a flagship by Google developers. So whatever we are doing right now is not a way that is being that is being told by those people. They want everything to be done on the official website. So whatever events we would be conducting after tomorrow, even the tomorrow's session will be conducted in the same manner. So आप लोगों को जाके वहाँ पे RSVP करना है. RSVP करना मतलब क्या है ना, कि बस आप बता रहे हो कि या you may be attending, like you would be probably attending the event. So please do mark your attendance. It's a very simple process. If you guys want, I can just I show can, you. yeah, I Yeah, can share the screen yeah, if you please guys do want. share the screen. And Yeah. guys, make sure after the session is over, in like it would be over in 10 minutes for sure, please RSVP for the event. Okay, Tanshu, you can just show it. Yeah, Ronak, could you please stop presenting? Okay. Ronak, one more question from Rohan. He is asking that I am a mechanical engineer, so how many days it will take to learn app development? Yeah, if you follow and YouTube channels and all online resource, it's only take 5 to 10 days, guys. Only 5 to 10 days. और एक ही दिन भी प्रेफर कर सकते हो अगर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया और वो सामने वाला जो सिखा रहा है उसको फॉलो किया, तो आप उसी दिन आपका एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हो. अगर आपको पूरा प्रो होना है तो आपको एटलीस्ट कोर जावा का नॉलेज होना चाहिए. जैसे कि आप अगर बिगिनर हो तो आप यूट्यूब से कुछ पढ़ के कुछ करोगे, सिंपली आप उसको कॉपी करके पढ़ोगे. ओके, बट आपको मीन्स उसके साथ आपका नॉलेज जो है ना ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होगा. आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बट वो इन्फॉर्मेशन तब तक के लिए यूजफुल नहीं रहेंगी जब तक आप उस इन्फॉर्मेशन को इलेबोरेट ना कर सको. तो इलेबोरेट करने के लिए आपको जावा सीखना पड़ेगा. सिंपली आप जावा सीख लो, एक कोर जावा तो भी सीख लो, तो आपको कोड का अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा. और जैसे जैसे कि आप एप्लीकेशन पे काम करते जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा एंड यू आर बिकम द डेवलपर. सो 10 दिन भी ये स्टेप फॉलो करोगे तो 10 दिन में आप काफी कुछ स्टडी कर सकते हो. ओके. Okay, so first of all, you have to type this URL into your address bar. I'll paste it in the chat section. And once you open this site, click on the search button over here. Type MET. You'll see our college. Click on that. And when you scroll down, you'll see an event, upcoming events. You will see this info session. So you just click on view details. And after that, just log into RSVP. So I have already done it from my account. So I'll be doing it once again from another account. And then you just have to, fill in the details over there. I've already done it, so I won't be able to do it over here again. But you just have to log in, and you will be able to fill in the details, and you will be registered for tomorrow's event. Okay, one more announcement. After this session, in some time or in tomorrow morning, I will upload all 3 sessions yesterday and okay, so all the 3 sessions on YouTube. So if anyone even if anyone don't present at this session, just tell them that go through that all the sessions. Okay,
And after that, just subscribe our YouTube channel, so every session will be uploaded on YouTube. Okay. Okay, thank you guys for attending. Thank you everyone for attending. You guys can leave. Don't forget to RSVP for the info session. Thank you.